that we will be able to cover very quickly. It's not complicated. It is something which is an extract of the Indian Evidence Act. And basically, the idea is to understand that uh, what are the repercussions of burden of proof on from a valuation perspective. The repercussion can be that in a court of law, under Evidence Act, in case ever you need to present your valuation report as a evidence, then in that case this study of this burden of proof will help you, number one. Number two, in case you want to practice the same principles of a burden of proof in making your own valuation report, because you might get one source of information from here, one source of information from here, and in some circumstances you might have conflicting views from based on the feedback that you're getting. So you need to understand that what would be the basis on which my I will have a strong proof for my decision with respect to the valuation exercise. So we let's go section wise. So section 101 says that whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. So बेसिक बात क्या कही कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जो बंदा ये कहता है कि मेरी बात ये मानिए सर, मैं जो बंदा एक स्टेटमेंट देता है, जो कोर्ट को डिसीजन लेना है कि वो उस स्टेटमेंट को मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता, जिसको प्रूव करना होता है उसको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है कि वो प्रूव करे कि जो वो कह रहा है वो सही है। So if A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed, A must prove that B has committed the crime. A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in possession of B by reason of facts which he asserts and B denies it to be true. A must prove the existence of those facts. So these are some illustrations that will help you understand this. On whom burden of proof lies? The burden of proof in a suit or proceedings lies on that person who would fail if no evidence at all were given on their side, on either side. So प्रूफ ऑफ बर्डन किसके पास रहता है? प्रूफ ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके पास रहता है जो हार जाएगा केस अगर वो कुछ लाएगा नहीं। अगर आपने कुछ चीजों को प्रूव कर दिया कोर्ट में, कुछ चीजों को आप प्रूव नहीं कर पा रहे, तो जहां पे भी बैलेंस होगा उसके बेसिस पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। तो A sues B for land for which B is in possession and which, as A asserts, has left was left to A by the will of C, B's सर father. पेज को थोड़ा जूम कर दें। Okay, okay. सर मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्ट ही दिख रहा है, तो सर आपके आई स्क्रीन डोंट में नो, फिर कोई इशू है? बाकियों को सही दिख रहा है? आई डोंट नो सर क्लियर है कितना सर, क्लियर। सही है सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर सही है, है, नहीं, क्लियर है सर। बाकियों सही को ऑप्शन भी ठीक से दिख रहा था। ये सर ये सर ऑप्शन ठीक ऑप्शन सही भी है, दिख रहा ये है। थोड़ा तो छोटा आपका था सर। आपका ये स्क्रीन ठीक है शायद सर। आपका स्क्रीन शायद फ्रोजन है, आपको थोड़ा नहीं सा सर ये उसको। ये ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं सर की बात कर रहा हूँ, उनको अभी भी वो टॉट ही दिख रहा है, तो मैं कह नहीं रहा हूँ दिख कि रहा आप सर। आप कैसे हो बोल रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, पेजेस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर से सर एक बार आप क्विट करके दोबारा अंदर आ जाइए, एक बार प्रोग्राम क्विट करके ना दोबारा आ जाइए, ठीक हो जाएगा। एग्जिट तो मारकर एंट्री मारिए सर। तो आगे चलते हैं। तो जब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, तो सबसे पहले हमने बात क्या की कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्राइमरीली किसके पास होगा, तो प्राइमरीली उसके पास होगा जिसको कोई फैक्ट प्रूव करना है। दूसरा क्या कह दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास लाई करेगा? उसके पास लाई करेगा जो अगर कुछ देता नहीं है तो वो उसका केस वो हार जाएगा, उसके ऊपर उसको प्रूफ देना उसका बनता है। Burden of proof as to a particular fact. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. तो अगर लॉ में लिखा हुआ है कि इसका प्रूफ ये बंदा देगा तो फिर अलग बात है, बट अगर लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर हमेशा ये माना जाएगा, कोर्ट यही मानेगा कि इसका प्रूफ इसको लेके आना है अपने आप को प्रूव करने के लिए। Burden of proving fact to be
So the burden of providing any fact necessary to be provided in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. Burden of providing that case of accused comes within exceptions. So when a person is accused of any offense, the burden of providing the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Indian Penal Code or within any special exception or proviso contained therein is upon him, and the court shall presume the absence of such person. तो अगर किसी को चार्ज किया गया आईपीसी के अंदर कि तुमने मर्डर किया है और तुम्हें सजा होगी, तो उसको उसके ऊपर अब बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उसको ये अगर कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि यस देयर वाज अ मर्डर और उसने किया है, तब उसको प्रूव करना है कि उसने सेल्फ डिफेंस में किया है। अगर वो कह पाता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है और प्रूव कर पाता है, तो उसकी पनिशमेंट बच जाएगी। Burden of proving fact especially within knowledge. So when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of providing that fact is upon him. तो अगर हम ये कहते हैं कि आज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को मिनट्स ऑफ मीटिंग्स प्रिजर्व करने हैं, कंपनी को अपने कंपनी लॉ रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने हैं, तो कंपनी ये नहीं कह सकती बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे बंदे का है, उसको बोलो लाने के लिए। कंपनी को वो रिकॉर्ड देना पड़ेगा। Burden of proving death of person known to have been alive within 30 years. So when the question is whether a person is alive or dead, and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. फिर ये तीन concepts हैं, may presume, shall presume, conclusive proof. इनको समझेंगे तो whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. Is directed by the act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. Conclusive proof is when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on the proof of the other fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. So this is the burden of proof. इसमें क्या चीज है जो है वो what are your questions? I can take up some questions on this subject. Any questions? सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन अपेयर हुआ है सर। सर स्लाइड नहीं शो हो रही जी स्क्रीन पे। सर बाकियों की हो रही है, आपको लॉग आउट करके लॉग इन होना पड़ेगा सर। सर नहीं हो रही जी, काफी देर तो नहीं हो रही है। बाकियों की हो रही है? हो रही है, यस क्लियर है, हो क्लियर है। क्लियर है सर। बाकी सबकी हो रही है सर। तो यस सर, आपके एंड पे प्रॉब्लम है, मेरे एंड पे आ रही है सर, सब कुछ ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चंस सर, एनी क्वेश्चंस? ठीक है सर। एनी क्वेश्चंस? एग्जाम में क्वेश्चन अपेयर हो गए तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? The difference between shall and may yes sir, that on that only the exam question was appeared. Question was if a woman is married and commits suicide, then the suicide is considered as dashed by the court. Will likely be murder, may presume murder, partially murder or murder. Like this question was appeared in exam sir. Okay, so in that case so what did you say sir? Can you repeat it? If the woman is, if a woman is married and commits suicide, then suicide is considered as dashed by the court. Will likely be murder, may presume murder, shall presume murder or murder. सर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो हमारा फैमिली लॉ के लॉज हैं वो आते हैं इसमें। तो उसके अंदर बेसिकली दी लॉ आस्क्स द कोर्ट्स टू प्रिज्यूम दैट इफ अ वुमन गेट्स डज अ सुसाइड विद इन सम 3 years 7 years ऑफ द मैरिज, तो उसमें ये माना जाता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड उसके अंदर ये वाला लिखा हुआ है शायद लॉ दैट इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी अ मर्डर अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। प्रूव नहीं किया। ओके सर। Any other question?
एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ प्रूफ में, ऑफ चाइल्ड 16 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है, अगर वो कोई इल्जाम लगाता है किसी तरह की भी मोलेस्टेशन का या कोई हीनियस क्राइम का, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बच्चे पे नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ था या वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, खास करके गर्ल चाइल्ड, उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है। यही सिस्टम बर्डन ऑफ प्रूफ का लागू होता है मैरिड वुमेन के लिए, जो सर ने बताया, विद इन 7 years, और सीनियर सिटीजन जो बेड रिडन है या इनसेन माइंड है, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एक्यूज। बाकियों में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दी कंप्लेनेंट। अगर मैं कहता हूं कि मेरी ए ने चोरी की है, तो मुझे प्रूव करना है कि पहले तो मैं उस प्रोडक्ट का ओनर हूं, फिर वो चोरी हुई है। ये 2 चीजें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी है, ना कि एक्यूज को प्रूव करनी है। कंसेप्ट बड़ा थिन लाइन का है, ध्यान से समझ लीजिए। 4 केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है, जब वो पॉक्सो, जिनके माइनर चाइल्ड की बात हो, बॉय और गर्ल, मे बी 376 रेप केस, मे बी 377, मे बी समथिंग एल्स, 354 जो मोलेस्टेशन रेड विद सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो। तो अगर ऐसा कोई हीनियस क्राइम जो छोटे बच्चे के साथ हो रहा है, तो जुर्म को नहीं किया ये एक्यूज साबित करेगा, ये याद रखिएगा। यही केस 7 years और कम के केस में मैरिड वुमेन के साथ, इनसेन माइंड जो कम मंद बुद्धि है, जिनके पास सर्टिफिकेट हो, ऐसे नहीं, और सीनियर सिटीजन अगर वो बेड रिडन है, घर में कोई हमारी माँ बाप अगर वो बेड रिडन है, चल फिर नहीं सकते हैं, तो उन केस में बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर उस मम्मी ने इल्जाम लगाया कि मेरी बहू ने मुझे पीटा है, तो बहू को प्रूव करना है कि मैंने नहीं पीटा है। ये ध्यान रखिएगा, 4 चीजें हैं, राइट। तो जो बिल्कुल ठीक है सर, जो पर्सपेक्टिव हमें देखना है वो ये देखना है कि व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको वैल्यूएशन करते हुए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट किसी के पास होना चाहिए, अब जैसे आपको टाइटल डीड चाहिए और टाइटल डीड जो है वो आपको नहीं मिल रही है, तो आप ये आराम से कह सकते हैं बैंक को कि टाइटल डीड सर मुझे चाहिए, क्योंकि टाइटल डीड के बिना हाउ डू आई सपोर्ट माय वैल्यूएशन रिपोर्ट। Although the burden of proof concept is not very directly applicable to it, बट जब आपसे पूछा जाए फ्यूचर में कि भाई आप बताइए कि आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट की पीछे की बैकिंग क्या है, तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारे पर्चे होने चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस टाइम पे, ये बताने के लिए कि देखिए मेरे पास ये सारा कुछ है। बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम द बर्डन ऑफ प्रूफ टू एस्टैब्लिश that the value that you arrived at, the facts that you relied on, had a strong basis. प्रूफ आपके ऊपर होगा उस टाइम पे, क्योंकि आप कोर्ट में खड़े होंगे या आप अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट को जस्टिफाई कर रहे होंगे कि ये ठीक है। बिल्कुल। और जब भी आप कोई वैल्यूएशन करें, ओरिजिनल टाइटल डीड अपने हाथ में लेके नंबर टैली करें और डिटेल जरूर टैली करें, और जिससे भी उसके साइन कराएं कि टाइटल डीड किससे ली गई है। डेथ सर्टिफिकेट अगर लिया है, तो जिससे आप डेथ सर्टिफिकेट ले रहे हैं उनका बेटा है, वाइफ है, कुछ और है, उससे लिखवाएं आई कंफर्म डेथ, उनके सिग्नेचर कराएं और साथ में उनका आधार नंबर लिखें। बर्डन ऑफ प्रूफ में ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी, क्योंकि आपने उसके सिग्नेचर लिया, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, आधार नंबर लिया। तो कई बार अगर कोई जाली डेथ सर्टिफिकेट आ गया और आपने किसी के सिग्नेचर नहीं लिए थे, तो प्रॉब्लम आप पे आ सकती है। ऐसे उस पे आएगी जिसने आपको इश्यू किया है। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको ओरिजिनल लेने होते हैं, बाकी आपको फोटोकॉपी सेल्फ उस बंदे से टेस्ट। थैंक यू सुनील जी। So let's move on to the next topic.